Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today we are going to discuss our first lecture of money, banking, and finance. And for this, I am going to teach you uh, the economics of money, banking, and financial markets. That is 7th edition. It has been written by Frederick S. Mishkin. So, inshallah ta'ala, we will have a good time together. So, before going to the first lecture, I'm going to show you the course contents of what we will study in this uh, class. So, first of all, we will talk about overview of the financial system, where we will talk about the different financial institutions, their role, their classification, etc. Then we will talk about role of financial institution, banking and non-banking, and the central bank in financial markets. Then we will go for determination of interest rate and the yield curve. Fourth, financial assets and rates of return, and then international financial markets and the domestic financial markets, institution and policy, issues of financial regulation. Then we will move towards which book we need to study. So first it is Hobart, and this is the link of his book. Second Rose, third is Miller, and fourth is Fiboli. ठीक है? So these books are easily available, but I will strongly recommend that we should study this book. Michigan, Economics of Money, Banking, and Financial Markets. So let us move towards the first lecture of our class, that is about why study money, banking, and financial markets. And then we will move towards an overview of financial markets, financial system or markets, and third word is money. So let us move towards our first lecture. Okay, so why to study money, banking, and financial markets? So first, I will give you a small review. So please do concentration. On the evening news, you have just heard that Federal Reserve is raising the federal funds rate by 1.5 of a percentage point. इसका मतलब ये है कि आप शाम में बैठे हुए हैं और आपको बताया जाता है कि फेडरल रिजर्व जो कि स्टेट बैंक है यूनाइटेड स्टेट का, उसने जो है फेडरल फंड रेट्स को 1.5% इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, तो इससे क्या होगा? What effect might this have on the interest rate of an automobile loan when you finance your purchase of a sleek new sports car? इसका मतलब ये है कि जब फेडरल फंड्स रेट जिसको 1.5% फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया है, ठीक है, उससे आपके ऑटोमोबाइल लोन पे उसका क्या असर पड़ेगा. ठीक है, उससे उस पे असर पड़ने से जब आप एक न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी कीमत पे इसका क्या असर पड़ेगा. डज इट मीन दैट अ हाउस विल बी मोर और लेस अफोर्डेबल इन द फ्यूचर? क्या फेडरल फंड्स रेट को इंक्रीज करने से आपका फ्यूचर में जो आप घर लेने की आपकी औकात है, आपकी सलाहियत है, क्या वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? विल इट्स मेक इट ईजियर और हार्डर फॉर यू टू गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर? क्या इस तरह करने से आपको नेक्स्ट ईयर जॉब हासिल करना आसान या मुश्किल हो जाएगा? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये बुक हमें प्रोवाइड करेगा. दिस बुक प्रोवाइड्स answer to these and other questions by examining how financial markets such as those for bonds, stocks, and foreign exchange and financial institutions, banks, insurance companies, mutual funds, and other institutions work, and by exploring the role of money in the economy. इस बुक में या ये पोस्ट पढ़कर हमें एटलीस्ट ये समझ आ जाएगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह से काम करते हैं, लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक और फॉरेन एक्सचेंज का किस तरह से हमारी इकोनॉमी के साथ लिंक है, किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और हम इसके साथ साथ मनी का जो रोल है इकोनॉमी में उसको भी स्टडी करेंगे. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इफेक्ट योर एवरीडे लाइफ बट आल्सो
involve huge flows of funds. फाइनेंशियल मार्केट्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ना कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर करती हैं, उस पर असर होता है, बट आल्सो इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोज ऑफ फंड्स, ट्रिलियन ऑफ डॉलर थ्रू आउट आवर इकानमी। और ये एक तरह से जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं हम लोगों की, उसको पूरी इकानमी में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसकी फ्लो होती है, ठीक है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में होती है, विच इन टर्न अफेक्ट बिजनेस प्रॉफिट। जब ये फंड्स की फ्लो होती है टोटल इकोनॉमी में, तो उसका असर किस चीज़ पे पड़ता है, आपकी बिजनेस प्रॉफिट पे पड़ता है, दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ता है, यानी आपकी जीडीपी पे पड़ता है, एंड इवन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कंट्रीज अदर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि ये बुक यूनाइटेड स्टेट में लिखी है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है, बल्कि सारी दुनिया पे इसका असर पड़ता है। What happens to financial market, financial institution, and money is of great concern to our politicians and can even have a major impact on our elections. हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स पे या हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हमारी जो मनी है उस पे असरअंदाज जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पॉलिटिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इलेक्शन में वो इन्हीं चीज़ों को एक तरह से वजह बना के, यानी अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसी को वजह बना के आपको आगे आपसे वोट लेते हैं, ठीक है, इलेक्शन में वो जीतते हैं। द स्टडी ऑफ मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स विल रिवॉर्ड यू विद इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी एग्जिस्टिंग इश्यूज। ये कोर्स पढ़कर हम सब जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आज हमारे इर्द गिर्द जो जो भी मसले जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट जा रहा है, फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज है या सेंट्रल बैंक है, जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब ये सारी जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उन सब की एक तरह से इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। In this chapter, we provide a roadmap of the book by outlining these issues and exploring why they are worth studying. इस बुक में हम जो है उन चीज़ों को एक तरह से आउटलाइनिंग उनकी करते हैं ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू स्टडी फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, लेकिन हम एक दफ़ा इसकी फिर से रिवीजन हो रही है कि हमारे साथ फाइनेंशियल मार्केट्स मार्केट्स इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल हु हैव इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल फंड्स टू पीपल हु हैव ए शॉर्टेज। एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट्स होते हैं जिसमें वो लोग जिनके पास एक्सेस ऑफ अवेलेबल फंड्स होते हैं और वो लोग जिनके पास शॉर्टेज होती है, उन दोनों को हम फाइनेंशियल मार्केट के जरिए से उनको मिलाते हैं, यानी वो मार्केट जहाँ पे ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सच एज बॉन्ड और स्टॉक मार्केट्स आर क्रूशियल टू प्रमोटिंग ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी by channeling funds from people who do not have a productive use for them to those who do। हम फाइनेंशियल मार्केट्स में या हमारे पास बॉन्ड है या हमारे पास स्टॉक है। बॉन्ड और स्टॉक का मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, लेकिन बॉन्ड का मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बॉन्ड हमारे पास वो सिक्योरिटी है जिस पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और उसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है, ठीक है, यानी एक तरह से ये हमारा जो नॉर्मली हम कर्जा लेते हैं बैंक से, एक इट इज़ ए काइंड ऑफ अ बॉन्ड। दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास शेयर्स को कहते हैं कि हमारे पास शेयर्स, एक कंपनी का आप एक शेयर लेते हैं, एक कंपनी की आप एक जो वोटिंग राइट्स होते हैं उसको आप लेते हैं, यानी आपको वहाँ पे जो आपका जो टैक्सेस, उसकी जो एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ निकाल के जब उसके पास प्रॉफिट मिलता है, एक कंपनी के पास जो उसका प्रॉफिट होता है, फिर उसको वो अपने शेयर होल्डर के साथ डिवाइड करता है, ठीक है, यानी स्टॉक भी आपके पास एक क्या है, एक सिक्योरिटी है। तो हम इस बॉन्ड और स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर एक कंपनी है जिसके पास आइडियाज़ हैं, जिसके पास एक चलता हुआ कारोबार है, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई आइडिया है ना, उसके पास टाइम है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, तो ये फाइनेंशियल मार्केट जो है इन दोनों बंदों को मिलाता है, ठीक है। तो उस बंदे को जिसके पास पैसे हैं, आइडिया नहीं है, और वो बंदा जिसके पास आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, इन दोनों को आपस में मिलाता है, और इस तरह से वो हमारी जो मैक्रो लेवल पे हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसको जो है इम्प्रूव करता है। Indeed, well-functioning financial markets are a key factor in producing high economic growth। अगर आपके पास वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट्स है तो इससे हमारे पास हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अचीव होगा।
इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मैंने बताया था जब आपके पास प्रोडक्शन में इंक्रीज आता है ईयर बाय ईयर, ठीक है, यानी आपकी जीडीपी पे ईयरली जो इंक्रीज आता है उसमें, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो अभी हमारे जो कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं, तो हमारी जीडीपी अभी माइनस 0 पॉइंट समथिंग में जा रही है, और यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की -10 पे जा रही है। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले 100 जीडीपी थी आपकी, तो अभी अगर आपकी -0.9 हो गई है सपोज, तो आप 0.9% आप 100 कर लें और वो उससे डिडक्ट कर लें कि ये आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कहा जा रहा है कि 10% है, तो आप देख लें कि 10% ऑफ 100, तो वो आपके पास 10 आ रहा है, तो 1090 आपकी जीडीपी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जीडीपी जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास फिल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट है, तो उसका जो है इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाएगा। एंड poorly performing financial markets are one reason that many countries in the world remain desperately poor। तो इसी वजह से कि फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ कंट्रीज की जो है वो वीक है, पुअरली परफॉर्म कर रही हैं, उसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमी जो है वो ख़राब है, वहाँ पे डिस्पैरेटली पुअरनेस है उन कंट्रीज में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट के डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स also have direct effects on personal wealth, the behavior of businesses and consumer, and the cyclical performance of the economy। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्टिविटीज़ हो रही हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो उसका जो है डायरेक्ट असर जो है आपकी पर्सनल वेल्थ पे जाएगा। सपोज मैं हूँ, मेरे पास पैसे थे, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरी पर्सनल जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गई है। इसके साथ साथ अगर मेरे पास जो बिजनेसेस हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो उनकी भी वेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। और इसी तरह से साइक्लिकल परफॉर्मेंस है, जो कि बिजनेस साइकिल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इकोनॉमी सपोज अच्छी जा रही होती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर यानी उसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। तो अगर आपके पास वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट है, तो उसकी वजह से आपको जो साइक्लिकल परफॉर्मेंस है आपकी इकोनॉमी की, वो की जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं जो बेसिक आपकी डिफिनीशंस हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं कि हमारे पास एक सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड जो है आपकी एक सिक्योरिटी है, या आपके पास जो स्टॉक है वो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी को हम इस तरह से कहते हैं कि एक सिक्योरिटी आल्सो कॉल्ड ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ क्लेम ऑन द इश्यूअर फ्यूचर इनकम और एसेट, एनी फाइनेंशियल क्लेम और पीस ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू ओनरशिप। यानी हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक सिक्योरिटी जो है उसको हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जो कि एक क्लेम है ऑन द इश्यूअर फ्यूचर इनकम और एसेट, कि जो बंदा उसको इशू करता है, आप वो सिक्योरिटी लेते हैं, तो आप का एक आप उसकी जो फ्यूचर अर्निंग होती है, फ्यूचर इनकम जो होती है, उस पर आप क्लेम कर सकते हो कि ये चीज़ मेरी भी है, ठीक है। सपोज मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि नुमान है, नुमान क्या करता है कि अपनी शूज़ फैक्ट्री के लिए लोगों से पैसे लेता है, या बॉन्ड इशू करता है, या शेयर की तरफ जाता है। तो एक तरह से वो दोनों सिक्योरिटीज हैं। अगर वो इशू करता है, ठीक है, बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड इज स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि नुमान जो है आपसे आपको ये चीज़ दे रहा है, इतने रुपए पे दे रहा है, और इसकी मतलब एक तरह से उस पर लिखा होता है कि जब भी नुमान इसको बेचेगा इसकी ये कीमत होगी, नुमान को इतना डिविडेंड मिलेगा, मतलब ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप एक क्लेम कर सकते हो उस इशूअर की फ्यूचर इनकम या उसके एसेट पे। तो तो इस वजह से हम इसको सिक्योरिटी कहते हैं। एनी फाइनेंशियल क्लेम, कोई भी फाइनेंशियल क्लेम और पीस ऑफ प्रॉपर्टी, या आपकी कोई हक आपका किसी पे, दैट इज सब्जेक्ट टू ओनरशिप, जो कि सब्जेक्ट है ओनरशिप पे। जिस बंदे की चीजें हैं, जिस बंदे ने इसको इशू किया है, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप उसकी फाइनेंस उस पर फाइनेंशियल क्लेम कर सकते हो कि आपके साथ मेरा हिस्सा है। इसके साथ हम कहते हैं ए बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी दैट प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट्स पीरियोडिकली फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड को आपको मैंने बताया था कि ये एक कर्जा होता है, ठीक है। इट इज अ डेट सिक्योरिटी दैट प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट्स पीरियोडिकली। ये आपको पीरियोडिकली, यानी अगर मैंने 5 साल के लिए आपसे लिया है कोई चीज, तो आप मुझे उस पर इंटरेस्ट रेट पे करोगे, ठीक है। आप यूजुअली ऐसा होता है कि साल के बाद आप मुझे उस पर एक इंटरेस्ट रेट जो होता है वो पे करते हो, और आखिर में मुझे क्या करते हो, अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मुझे वापस करते हो, ठीक है। तो बॉन्ड जो है, सपोज मैंने 10 रुपए का बॉन्ड लिया है, उस पर 1% इंटरेस्ट रेट है,
और मैंने 5 साल के लिए आपसे लिया है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है आपका मुझे पहले से डिटरमिन होता है कि आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है या मंथली है या सीनी है, इस तरह से, ठीक है। उसके मुताबिक आप मुझे ईयरली या एनुअली पैसे देते हो, और साथ में जब 5 साल पूरे हो जाएंगे इस बॉन्ड की जो इसकी मेच्योरिटी डेट है, तो फिर आप मुझे क्या दोगे। मैंने जो बॉन्ड 10 रुपए का लिया है, एक जो उसकी अपनी प्राइस है वो भी मुझे आप वापस दोगे। तो हम कहते हैं कि बॉन्ड इज डेट सिक्योरिटी दैट प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट्स periodically फॉर a specified period of time. A bond market is especially important to economic activity because it enables corporations or governments to borrow to finance their activities and because it is where interest rate are determined. तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है आपकी वहां पे डिटरमिन होती है जहां पे आपके बारोवर्स और लैंडर्स, ठीक है, उनकी इंटरेक्शन होती है, यानी उनकी डिमांड और सप्लाई से आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी में डिटरमिन होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए बॉन्ड मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट को क्या करती है, उनको एनेबल करती है कि वो वहां से बारोइंग करें और फाइनेंस करें अपनी एक्टिविटीज को, और यही वो जगह है जहां से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन होता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट की बात आ रही है, तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इन इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द प्राइस पेड फॉर द सेंट्रल फॉर द रेंटल ऑफ फंड्स। हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी अगर मैं कोई कर्जा ले रहा हूँ किसी से, तो मुझ पे जो कास्ट आएगी वो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप ये करते हो कि आप एक तरह से पैसे लोगों को देते हो, लेंड करते हो, ठीक है, तो आपको भी एक कोई मुनाफा आता है। तो हम कहते हैं कि आर द प्राइस पेड फॉर द रेंटल ऑफ फंड्स। आपको जो प्राइस मिलती है, जो फंड्स आप जो है रेंट पे देते हैं लोगों को, ठीक है, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस इज अ परसेंटेज ऑफ द रेंटल ऑफ 100 पर ईयर, $100 पर ईयर। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज पे होता है, और यूजुअली इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द, यानी $100 पे, यानी परसेंटेज है ना। 100 में जब परसेंटेज की बात आती है तो हम 100 में बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि यार आप पे 2.5% इंटरेस्ट रेट है, तो मतलब ये है कि आपके $100 पे 2.5% इंटरेस्ट रेट है। तो अभी अगर किसी ने वो 1000 लिया है, तो 1000 में तक हमारे पास 10 100 होते हैं। तो 10 100 में से अगर आप लेते हैं 2.5 ठीक है, तो 2.5%, तो 2.5% ऑफ 100, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 10 पे, या आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि 10 मल्टीप्लाई बाय, यानी आपने 1000 का जो है 10%, 2.5% निकालना होता है, ठीक है। देयर आर मेनी इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। हमारे पास डिफरेंट सर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिसमें हमारे पास मोर्गेज इंटरेस्ट रेट, कार लोन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मोर्गेज इंटरेस्ट रेट्स, कार लोन रेट्स और इंटरेस्ट रेट और मेनी अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं उन पे आपने मुझे लिखना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको बाद में जो है गूगल क्लासरूम में भी मैं कह दूंगा कि आपने ये असाइनमेंट मुझे करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर इंपॉर्टेंट ऑन ए नंबर ऑफ लेवल्स। आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो कई लेवल्स पे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन ए पर्सनल लेवल, हाई इंटरेस्ट रेट could deter you from buying a house or a car because the cost of financing it would be high. इंटरेस्ट रेट जो है हमारी जिंदगी में हमारे कई लेवल्स पे हम पे असरअंदाज होता है, ठीक है। किस तरह से, तो वो अभी आजकल चल रहा है ना 7% मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में। तो आप देख लें कि वो आपको किन किन तरीकों से इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले जो है पर्सनल लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से मैं क्या करूंगा, कार या हाउस की बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है उसकी फाइनेंसिंग हाई होगी, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है, मैं कर्जा लूंगा या मैं वो कर्जे पे लूंगा तो उसका इंटरेस्ट रेट मुझे 7% जो है वो देना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे नुकसान हो रहा है। कन्वर्सली, हाई इंटरेस्ट रेट could encourage you to save because you can earn more interest income by putting aside some of your earning is savings। अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में हाई है, उसकी वजह से आपकी सेविंग जो है वो इनकरेज हो रही है, आपकी जो स्पेंडिंग है वो आपकी डिस्करेज हो रही है, क्योंकि स्पेंड करने से आपको क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप सेव करते हैं और उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट या उससे जो पैसे मिलेंगे, आपको जो इनकम मिलेगी, इट वुड बी मच हायर देन इफ यू स्पेंड इट। So it is somehow a good thing for economies like पाकिस्तान, जहाँ पे आपकी क्रिकेट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है।
इसी तरह से हम ये कहते हैं ऑन ए मोर जनरल नोट इंटरेस्ट रेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज दे इफेक्ट्स नॉट ओनली कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू स्पेंड और सेव बट आल्सो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसी तरह से आपका बिजनेसेस जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो भी आप इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, किस तरह से इफेक्ट होते हैं? सपोज एक बिजनेस है मेरा, जिस तरह मैंने नुमान की बात की थी, अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ज्यादा है तो वो अपने बिजनेस के लिए लोन नहीं लेगा। जब वो लोन नहीं लेगा तो उसके इकोनॉमी उसका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं होगा। अगर उसका बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम होगी, क्योंकि उसको मजदूरों की जरूरत नहीं होगी। अगर वो इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो क्या करेगा, वो मशीनरी को इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो स्पेंडिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी डिसीजंस पे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हाई इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल माइट कॉज ए कॉर्पोरेशन टू पोस्टपोन बिल्डिंग ए न्यू प्लांट दैट वुड इंश्योर मोर जॉब्स। वही बात है कि इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो एक कॉर्पोरेशन या एक कंपनी जो है उसको क्या करेगा, उसको कहेगा कि अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, रोकें, कर्जा नहीं लें, आप न्यू प्लांट नहीं लगाएं तब तक जब तक आपके पास इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसी वजह से अगर वो न्यू प्लांट नहीं लगाता तो आपके पास जॉब्स कम होंगी। ठीक है, बिकॉज चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेसेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। वही बात है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है उसका बहुत अहम इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आपकी इंडिविजुअल्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, बिजनेसेस पे एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन fluctuation in interest rate that have been substantial over the past 20 years. For example, the interest rate on the 3-month Treasury bills peaked at over 16% in 1991. हम कह रहे हैं कि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से आपके इंडिविजुअल्स या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेसेस और ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो आपकी उनको डिस्कस करना ये इम्पॉर्टेंट है, उनको एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है आपके पिछले 20 साल में। फॉर एग्जाम्पल द इंटरेस्ट रेट ऑन 3-month ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो कि आपके सेंट्रल बैंक जो है इशू करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट रेट को पे आपको 16% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 1991 पे, फिर ये इंटरेस्ट 3% पे आ गया, फिर इन 92 और 93 में ये फिर 3% पे आ गया, फिर ये जो है 5% में चला गया 1990s में। इसी तरह से फिर ये फिर कम हुआ 2% पे अर्ली 2000 में। तो मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही थी। तो इन फ्लक्चुएशंस का आपकी इकोनॉमी पे, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, आपके इंडिविजुअल्स पे एक डिफरेंट असर था। बिकॉज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हैव a tendency to move in यूनिसन इकोनॉमी। आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो आपके साथ तकरीबन आपके साथ एक ही जगह पे एक ही तरीके से आपके साथ फ्लक्चुएट्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स फ्रीक्वेंटली लम्प इंटरेस्ट रेट टुगेदर एंड रेफर टू द इंटरेस्ट रेट। आपके पास अगर आप देख लें, ठीक है, आपके पास ये देखें, आपके पास डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हैं। आपके पास 3-month ट्रेजरी बिल्स आपके पास ब्लू हैं, ब्लैक आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं और यूएस गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है वो आपके पास रेड हैं। ठीक है, तो उससे उस सब को जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट ये लोग बोलते हैं। तो इस सब को हम क्या कह लेते हैं कि ये पूरे इंटरेस्ट रेट में आपके पास फ्लक्चुएशंस आई हैं। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कॉमन स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कॉमन स्टॉक या आपके पास बॉन्ड होते हैं या आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सिक्योरिटीज में या बॉन्ड होती हैं या आपके पास स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टॉक की टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, a common stock typically just called stock represent a share of ownership in a corporation। आपके पास कॉमन स्टॉक जो है वो एक कॉर्पोरेशन में आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज सिक्योरिटी दैट इज क्लेम ऑन द अर्निंग एंड एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस। ये आपकी एक तरह से अर्निंग्स है, ये आपकी एक तरह से ऐसी सिक्योरिटी है जिसकी जरिए से आप अर्निंग क्लेम कर सकते हैं और एक कॉर्पोरेशन के लिए वो एसेट्स हैं। ठीक है, आपके लिए अर्निंग है, उसके लिए एसेट है। किस तरह से, सपोज नुमान की कंपनी है, नुमान को मैंने पैसे दिए हैं, नुमान ने उसे प्लांट लगाया है और नुमान से मैं पैसे अर्निंग उसको उससे मुझे मिलती है, यानी डिविडेंड्स मुझे मिलते हैं और नुमान को खुद क्या मिलता है, उसके पास एक कंपनी का अपना एक एसेट मौजूद है। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि आपके पास जो स्टॉक है ये एक सिक्योरिटी है जो कि आपके लिए अर्निंग है और दूसरे जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए एसेट्स है।
ठीक है। तो यानी एक तरह से यानी अगर आपने एक कंपनी का स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है, एक कंपनी है, सपोज नुमान की कंपनी है, तो नुमान की कंपनी में आपका एक हिस्सा बन जाता है। सपोज नुमान की कंपनी का 50% मैं ले लेता हूँ, तो नुमान की जो अर्निंग्स है, ठीक है, और जो उसकी एसेट्स है, उस पर मेरा एक क्लेम है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको 50% स्टॉक मैंने उस कंपनी के खरीदे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी एक सिक्योरिटी जो कि एक क्लेम है आपकी किसी कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स पे या उसके एसेट्स पे। Issuing stock or selling it to the public is a way for corporation to raise funds for to finance their activities. एक corporations के लिए एक जो अहम जरिया है, ताकि जिसके जरिए से वो अपने फंड रेज करे, तो उसमें सबसे अहम जरिया जो है वो इशूइंग स्टॉक और सेलिंग इट टू द पब्लिक है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी जो कंपनी जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो क्या करते हैं, इशू करते हैं स्टॉक को या सेल आउट करते हैं अपने स्टॉक को स्टॉक मार्केट में। The stock market, in which claims on the earnings of corporations, shares of stock are traded, is the most widely followed financial markets in America. यानी अमेरिका में लोग जो हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल यानी स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी से वो लोग अपने लिए पैसे या अर्निंग कमाते हैं, ठीक है। The stock market, in which claims, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, is a widely financial market in America. अमेरिका में ये ज़्यादा मकबूल है. That is why it is often called simply the markets. यानी इसको हम simply market भी कह सकते हैं. A big swing in the prices of shares in the stock market is always a big story on the evening news. हमारे साथ जब हम शाम के वक्त बैठे होते हैं, फेसबुक में देख रहे होते हैं या टीवी पे देख रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि आपके पास जो है जो फलानी कंपनी है, फलानी कॉर्पोरेशन है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो गई हैं, तो उसमें ये जो बिग स्विंग आया है प्राइसेस में, ये एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी स्टोरी होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका होता है। People often speculate on where the market is heading and get very excited when they can brag about their last latest big killing, but they become depressed when they suffer a big loss. लोग जो होते हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में वो की होती है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की होती है, उन लोगों के लिए बहुत अहम न्यूज़ होती है जब उनको पता चलता है कि आपके पास जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि आज प्राइसेस जो है स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और उससे फ़ायदा नहीं हुआ, यानी उनको नुकसान हो जाता है। But they become, actually हमने पढ़ लिया है, the attention the market receives can probably be best explained by one simple fact. It is a place where people can get rich or poor quickly. तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट वो जगह है, वो बॉडी है जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत जल्द क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं या गरीब, क्विकली, बहुत जल्द, ठीक है। A figure to indicate stock prices have been extremely volatile. आपके पास जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, यानी उनमें बहुत जल्द चेंजेस आ जाती हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। अब तो द मार्केट रोज इन 1980s, द ब्लैक मंडे। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग खुद रीड कर लें, मैं आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम सेकंड जो हमने पहले हम स्टॉक मार्केट की बात की है, अभी हम फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो था वो लोकल था, अभी जो है फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। To funds to be transferred from one country to another, they have to be converted from the currency in the country of origin, says dollar, into the currency of the country they are going to, say euros. हम ये कह रहे हैं कि आपके अगर मैं एक कंपनी में एक जगह पे बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं जो है यूएस में बैठना चाहता हूँ, यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ या यूएस पैसे सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये पैसे मैं लेके जाऊँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इस चीज़ में, डॉलर में, ठीक है। तो इन डॉलर को मैं कन्वर्ट करके फिर मैं जो है यूएस जा सकूँगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इकोनॉमी में डॉलर की जो है इनफ्लो नहीं हुई, आउटफ्लो हो रही है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पास फंड्स हैं वो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उसको आपने सबसे पहले उस अपनी करेंसी को दूसरी जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसमें आपने उसको कन्वर्ट करना है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज where this conversion take place, and it is instrumental
इज मूविंग फंड्स बिटवीन कंट्रीज। और यही वो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ पे आप जो है अपनी करेंसी को कन्वर्स करते हो उस दूसरी कंट्री की दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ। तो इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन मूविंग अच्छा, ये एक तरह से एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो फंड्स हैं उनको मूव कर सकें। इट इज ऑल्सो important because it is where the foreign exchange rate, the price of one country currency in terms of another determined। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो निकलता है। किस तरह से, अभी हम कह रहे हैं कि $1 जो है वो 167 रुपए का है पाकिस्तान का, ठीक है। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लोग जो हैं वो बाहर कम जा रहे हैं, यानी हमारी कंट्री से बाहर पैसे कम जा रही हैं और हमारी कंट्री में इन ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वक्त में हमारी इकोनॉमी में जो डॉलर रेट है वो कम हो जाएगा, डॉलर का वैल्यू कम हो जाएगी, पैसे ऊपर आ जाएंगे। यानी यही डॉलर जो जिसको आप 167 रुपये पे ले रहे हो, ये डॉलर आपके पास 160 तक भी आ सकता है, 150 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट हैं, आपके पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और या आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट है। तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक्स हैं, तो वो इंशाल्लाह हम फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ज़रिए से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो वहाँ पे डिटरमिन होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या चीज़ है। यही चीज़ जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि वो कौन सी मार्केट है जहाँ से आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को जो है खुद डिस्कस कर लें। ये आपके पास एक ग्राफ है जिसमें डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है आपके वर्टिकल लाइन पे है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके पास ईयर्स लिखा हुआ है। तो विद ईयर स्टॉक प्राइसेस जो है वो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो उसमें इंक्रीज आ रहा है 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 ऐसे। लेकिन फिर ये 2000 और 2005 के दरमियान जो है इसमें एक बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लें, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये आपके पास एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर सपोज पहले जो था वो 1973 में 100 था, ठीक है। लेकिन आपके पास 100 था, तो उससे आपके पास 19 उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं ये इस तरह से इसमें डिक्रीज आता है, फिर इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज 1985 में इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है, फिर इस तरह से ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को खुद देख लेना है। अभी हम आ रहे हैं कि वाई स्टडी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा लेक्चर जो है वो सेंड करता हूँ, तो फिर आप जो है ये ऊपर चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि हम फाइनेंस स्टडी इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट करें, मैं उसको अभी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।